Jai Hind students. In last class we have done with the Faraday's second experiment, and now today we are going to show it that is mathematically. Now the expression for the induced EMF based on the both the laws, that is Lenz law and Faraday's law, is like this way, that we know that the electric flux EMF is d phi by dt. Rate of change of flux with respect to time is known as EMF. This EMF could be written like this: E is equals to minus phi 2 minus phi 1, where phi 1 and phi 2 are initial flux and final flux respectively. Okay. If the coil has n number of turns, then we could write as EMF is equals to minus n d phi by dt. I hope that you remember why should I place the minus sign over that. So minus n d phi by dt, and it could be also written as E is equals to minus n phi 2 minus phi 1 by t. So the expression for induced current will be, as we know that from the Ohm's law, V is equals to IR. Similarly, EMF will be equal to induced current multiplied by the resistance, or I can say that I will be is equals to minus d phi by dt in the reciprocal of R. It is written as like this way: I is equals to minus 1 by R d phi by dt, like this one. Okay. So expression for the charges, we know that the current is nothing but the rate of flow of charge. So to express this current, we can write it like that: dq by dt will be equal to minus d phi upon r dt, and in the terms of charges it will be equal to dq is equals to minus d phi by r dt, and dt will get cancel out. But here you have to note a point, that induced EMF does not depend on resistance of the circuit, whereas the induced current and induced charge depend on resistance. Induced EMF does not depends upon the resistance. इस बात का ध्यान रखिएगा कि V is equals to IR में आपका रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट करता है और ना ही आपके करंट पे डिपेंडेंट करता है. R was directly proportional to the resistivity of the material, length of the wire and area of cross section. R is equals to rho L by A. यहाँ पर R आपका मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं है कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस या अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट पर डिपेंड करता है. सिमिलरली वही बात यहाँ पर भी है. इंड्यूस्ड EMF डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस. इस बात का ध्यान रखिएगा MCQ के लिए. नाउ द मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF. सारी कहानी अगर इंड्यूस्ड EMF की चल रही है तो इंड्यूस्ड EMF को हम कैसे निकाल सकते हैं. इसको चेंज करने के 3 तरीके होते हैं, या आपको 3 तरीके से आप इसको वेरी करा सकते हैं. पहला, इफ़ यू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. सेकंड, इफ़ यू चेंज द करंट, एंड इफ़ यू चेंज द ओरिएंटेशन. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. हाउ कैन आई चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. So if the magnetic flux can be changed by changing the magnetic field, hence EMF can be induced in the circuit based on the Faraday's experiment. ये कैसी बात है सर? आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज़ नथिंग बट B डॉट ए बी ए कॉस थीटा. दैट मीन्स आपने B को चेंज किया, आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, दैट फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. ये बात मेरे समझ में आ गई. इफ़ यू चेंज दी मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीजिंग भी हो सकती है और इट कुड बी इन द नेचर ऑफ डिक्रीजिंग. इन बोथ द केसेस योर फ्लक्स इज़ गोइंग टू चेंज, और जैसे ही ये होगा आपका फ्लक्स चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बाद. नाउ सेकेंड टर्म इज़ फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. दैट मीन्स इफ़ वी हैव डन विद द बी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एरिया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया को अगर आप चेंज कर रहे हैं कहीं पर भी, इधर इट इज़ इंक्रीजिंग इन नेचर और डिक्रीजिंग इन नेचर. डिक्रीजिंग इन नेचर.
अब ये कैसे इंक्रीज़ होगा, कैसे डिक्रीज़ होगा, इसके लिए आपको लूप पढ़ना पड़ेगा। लूप कैसा, ये है लूप। सपोज देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड देर इज़ अ लूप PQRS। अब जैसे जैसे आप इस लूप को पास लेके आते जाएंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसकी लेंथ पे इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज़ होगी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, लाइक दिस वे। इनिशियल पोजीशन was PQRS, this was, and the final position is P dash, Q dash, R dash and S dash. This is the final area which is in the magnetic field. So by changing the area of the coil you can change the magnetic flux. Now इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट द पेपर टाइप इज़ ऑफ MCQ इन नेचर, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट, नॉट द डेरिवेशन, बट आप इसका ध्यान रखेंगे। द लूप PQRS इज स्लाइडेड इन टू यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मीन्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स इनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड में आपका रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया बढ़ रहा है। सो द चेंज दैट इज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द कॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड इज dA in time dt. This is the cause and increase in the magnetic flux, that is d phi. Got the point? Simple the formula, phi is equals to b dot da, d phi is equals to b dot da. तो b की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। एरिया को क्या लिख सकते हैं, जितनी लेंथ है इस वायर की और जितनी इसकी ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ कैसे निकलेगा, v डॉट डी टी, बी एल वी ऐसे निकालते हैं ना, तो बी एल वी डी टी विल बी द फ्लक्स एंड ई एम एफ विल बी ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, आपके पास खाली बचा ई एम एफ विल बी इक्वल टू माइनस बी एल वी। दिस इज कॉल्ड एज मोशनल ई एम एफ। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अलग से टॉपिक है आपकी एन सी आर टी में, मोशनल ई एम एफ। मोशनल ई एम एफ, इसका ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। E is equals to BLV. Now the induced EMF is due to the motion of the loop, so it is called as motional EMF. And if the loop is pulled out of the magnetic field, that means अगर आपने इसको इनवर्ड भेजने के बजाय आपने इसको बाहर खींचना शुरू कर दिया, again the area is changing. How? Area is continuously decreasing ना फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब एरिया डिक्रीज़ हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, इसका क्या मतलब है, इंड्यूस ईएमएफ कम होगा। इंड्यूस ईएमएफ कम होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा फाइनली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा साइकिल चलता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप, दैट इज P डैश, S डैश, R डैश, Q डैश, P डैश फ्रॉम द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और बाय लेंज लॉ। आपको जो इच्छा है आप वो लगा कर देख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लेंज लॉ लगा रही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाने में, आप कांटेक्ट कर दीजिए। ठीक, आप कांटेक्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको मैंने बहुत अच्छे से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ाया हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो भी है। नाउ according to the Lenz law, the direction of induced current is such that it opposes the cause of changing magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी होगी, ऐसी होगी कि वो इंक्रीज़ होती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज़ करा दे। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसी होगी कि डिक्रीज़ होती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स को वो इंक्रीज़ कर दे। यही तो था लेंज लॉ, जिस कॉज की वजह से वो आ रहा है उसी कॉज को वो अपोज करेगा। इंड्यूस करंट जिस कॉज की चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आ रहा है, अगर वो इंक्रीजिंग इन नेचर की हुई तो उसको डिक्रीज़ करा देगा करंट, अगर डिक्रीजिंग हुई तो इंक्रीज़ करा देगा। यहाँ पे कैसे लगाया हमने, द कॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप एंड इट इंक्रीजेज इन द एरिया ऑफ द कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसके ऑपोजिट होगा। Therefore, this motion of the loop is to be opposed, so that direct current is setting itself such that by the Fleming's left-hand rule, the conductor arm PS experiences force to the right, whereas the loop is trying to move to the left of this. Against this force, you have to do a mechanical work, which is done
और ये मैकेनिकल वर्क आपका कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज़ इंड्यूस करंट. If the loop is completely inside the boundary of a magnetic field, then there will be not be any change in the magnetic flux, and so there will be no induced current of the loop. This is a important point for your assertion reason question. Got the point? So यहाँ तक की बात थी. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है ये देख लीजिए. You have to stretch your 3 fingers, thumb, index finger and middle finger in such a way that the index finger will show you the direction of magnetic field, thumb will point towards the force and the middle finger will point towards the electric current. तो आप राइट हैंड रूल लगाते हैं करंट के लिए. If the central finger, forefinger and thumb of the right hand are stretched mutually perpendicular to each other and the forefinger points towards the magnetic field, thumb points in the direction of force, then the central finger points towards the induced current in the conductor. So thank you and जय हिंद. आज की क्लास में यही ख़त्म कर रहा हूँ. इसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन को देखेंगे. टिल देन अपना ध्यान रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद. गॉड ब्लेस यू ऑल.